Assalamualaikum, Dr. Afshin Akbar here. Hope you all doing well. Today we are going to start our new chapter, Regulation of Respiration, chapter 42. So in regulation of respiration, there are certain factors that regulate the respiration. In these factors, we have nervous control, there is chemical control. In this nervous control, there are certain other important components of this nervous control, central and peripheral controls. Central control hai. Central, that means we are talking about brain. Peripheral control, that means we are talking about below the brain, right? So in central control, there are certain respiratory centers are there, right? And in peripheral control, like from lungs or from heart and the carotid bodies, we have different receptors over there. Achha, here again, chemical control. Central chemoreceptors are there are peripheral chemoreceptors. अच्छा, जो nervous control होता है उसमें कुछ signals जा रहे होते हैं, ठीक है? Like respiratory inspiration के signals हैं, expiration के signals हैं, और inspiration को खत्म करने के, expiration को initiate करने के कुछ signals हैं, जो signals direct brain में भी generate हो रहे हैं through these processes of inspiration and expiration. और इसके अलावा जो chemical control की बात करें, chemical control में जो central chemoreceptors है, like these central chemoreceptors are present in the brain. अब peripheral chemoreceptors वो peripherally मौजूद है कहीं पे, ठीक है? अच्छा, ये जो chemical chemoreceptors हैं, ये sense करते हैं levels of oxygen, carbon dioxide and pH like hydrogen ions. ये सारे इनको जो है वो sense कर रहे हैं. रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, जिनमें बहुत 3 इंपॉर्टेंट भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को हम डिस्कस करते हैं. दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स लोकेटेड बायलैटरली इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, bones of the brainstem. 3 major collections of neurons are there in the medulla oblongata: dorsal respiratory group of neurons, ventral respiratory group and pneumotactic जो है वो सेंटर्स भी मौजूद है. अच्छा, इसमें जो dorsal respiratory group of neurons है, in the dorsal portion of the medulla, it causes inspiration. Whenever there is signals goes towards this center, it initiates inspiration. That means we are taking breath. अंदर की तरफ सांस लिया. Whenever there is signals goes to ventral respiratory group, in the ventrolateral portion of the part of the medulla, it causes expiration. That means we are exhaling. हम बाहर की तरफ जो है वो सांस एक्सेल कर रहे हैं. अच्छा, उसके अलावा तीसरा नीमोटैक्टिक सेंटर है. ये लोकेट होता है डॉर्सली इन द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द बोन्स. इट कंट्रोल्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग टू लिमिट द इंस्पिरेशन, ठीक है, एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग. अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है नीमोटैक्टिक सेंटर के, ये देखता है कि इंस्पिरेशन बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है, बहुत ज्यादा है. ये बेसिकली नीमोटैक्टिक सेंटर जो है वो इंस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसके रेट ऑफ ब्रीदिंग को भी कंट्रोल कर रहा है. एपनियोस्टिक सेंटर जो है बेसिकली ये भी पोटेंशिएट करता है इंस्पिरेशन को, बड़ी प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन को पोटेंशिएट करता है. सर्टेन डिजीजेस में भी ये एक्ट करता है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स हम देखेंगे यहाँ पे. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप दैट कॉजेज इंस्पिरेशन, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन भी कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमोटैक्टिक सेंटर भी एक मौजूद है, ये हम नजर देख रहे हैं यहाँ पे. ये इनहिबिट करता है बेसिकली इंस्पिरेशन को. एपनियोटिक सेंटर जो है ना, ये बेसिकली इसके ऊपर कुछ रिसर्चेस भी चल रही हैं और ये थोड़ा सा कुछ बताता है कि ये भी पोटेंशिएट करता है इंस्पिरेशन को. हम आ जाते हैं पहले डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के ऊपर. दिस रेस्पिरेटरी ग्रुप of neurons also called as pacemaker of respiratory signals, ठीक है. If all the peripheral nerves entering the medulla, जितनी भी peripheral nerves हैं जो medulla में enter हो रहे हैं, उनको section कर दिया जाए, काट दिया जाए, brain stem से भी, brain stem के above level पे भी and below the medulla, even then generate the respiratory signals. उसके बावजूद signals आएंगे, ठीक है. It generates the basic rhythm of respiration in form of inspiratory neuronal action potential or inspiratory RAM signals that transmitted to the inspiratory muscles, mainly to diaphragm. अब ये dorsal
है, ये बेसिकली पेस मेकर की तरह काम करता है कि यहाँ से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, चाहे कितनी भी पेरिफेरल नर्व्स को आप कट कर दें, मेडुला से सेक्शन कर दें, ब्रेन स्टेम से और मेडुला ऑब्लोंगेटा से उसको अबव एंड बिलो काट, उसके बावजूद रेस्पिरेटरी सिग्नल्स आएंगे बेसिकली क्योंकि ये खुद जनरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक कह सकते हैं इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स भी की तरह एक रैम्प होता है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट करते हुए सिग्नल्स इसके बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, इंस्पिरेटरी मसल्स की तरफ जाते हैं, मेनली डायफ्राम की तरफ। ठीक है, ये सिग्नल, ये एरियाज ग्रुप्स हमने देखे थे, रेस्पिरेटरी ग्रुप मसल्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, अच्छा एपनियोस्टिक था, निमोटैक्टिक सेंटर भी था इसके साथ। यहाँ पे कुछ हमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ हमें मसल्स इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक और एक चीज देखिएगा, एओर्टिक बॉडी रिसेप्टर्स भी मौजूद है, यहाँ पे कैरोटिड बॉडी रिसेप्टर्स भी मौजूद है। ये केमिकल कंट्रोल में हमें कुछ समझ आएगी इसके बारे में। अच्छा, व्हाट इज इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स? नॉर्मल रेस्पिरेशन में बिगिंस वीकली, इंक्रीज स्टेडीली इन अ रैम्प मैनर फॉर अबाउट 2 सेकेंड्स। इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स जो होता है ना, कि जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं सिग्नल, जब ब्रेन इसको जनरेट कर रहा है, ये 2 सेकंड्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन द नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये वीकली और इंक्रीज करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। Then it finished abruptly for approximately next 3 seconds and turn off the excitation of diaphragm and allow elastic recoil of the lungs and chest wall to cause expiration. अब इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल कहाँ से जनरेट हुए? डॉर्सल ग्रुप से जनरेट हुए। विद इन 2 सेकेंड्स ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए रेस्पिरेटरी जो इंस्पिरेटरी जो मसल्स एंड डायफ्राम उसको एक्साइट किया। 3 सेकेंड्स के बाद मजीद टोटल 5 सेकेंड्स का ये इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स हुए। 3 सेकेंड्स के बाद ये और टर्न ऑफ हो गया। उसके बाद उन्होंने अलाउ किया लंग्स के इलास्टिक रिकॉइल को कि वो अब काम करें। इलास्टिक रिकॉइल काम करेगा that causes expiration, क्योंकि एक्सपिरेशन में मेनली मसल्स तो हैं लेकिन caused by elastic recoils of lung। ठीक है, उसके बाद इंस्पिरेटरी सिग्नल्स बिगिन अगेन फॉर अनदर साइकिल। उसके बाद फिर एक दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है और ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाती है विद एक्सपिरेशन अकरिंग इन बिटवीन। उसके बीच में फिर एक्सपिरेशन भी आती रहेगी जिस तरह के इलास्टिक रिकॉइल की वजह से आई है। और ये हर 2 से 3 सेकंड्स के बाद ये रैम्प सिग्नल्स आए, इंस्पिरेशन हुई और खत्म हुई, एक्सपिरेशन हो गई। ठीक है, सो ये इंस्पिरेटरी सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड एज रैम्प सिग्नल्स। ठीक है, ऑब्वियस इसकी एडवांटेज क्या है? It causes a steady increase in the volume of the lung during the inspiration। ऐसा होता है ना कि बड़ा इंस्पिरेटरी जो है बहुत प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन हो गई अगर, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो टाइडल वॉल्यूम बहुत सिवियरली और बड़ा रैपिडली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से रैम्प सिग्नल्स की वजह से होता क्या है कि जो लंग का जो वॉल्यूम है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो इंक्रीज हो रहा है इन दीज सेकेंड्स। ठीक है, रादर देन एन इंस्पिरेटरी गैप के बहुत बड़ा गैप आ जाए, बहुत ज्यादा जो वो लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए। Two qualities of these inspiratory ramps are controlled। कैसे? इनकी 2 क्वालिटीज कंट्रोल होती हैं, rate of increase in the ramp signals and the limiting point at which the ramp suddenly ceases। अब ये जो रैम्प सिग्नल्स है ना उनका भी एक रेट होता है। सो बट ड्यूरिंग रैपिड रेस्पिरेशन द रैम्प इंक्रीजिंग रैपिडली एंड देयरफॉर फिल द लंग्स रैपिडली एंड कंट्रोल द ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो रैम्प सिग्नल्स है ना ये बेसिकली रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा है। अगर तो रैपिड रेस्पिरेशन है, रैपिडली लंग्स को फिल कर देगा, लेकिन उसके बावजूद ये उसका जो लेवल है, उसकी जो फिलिंग है लंग की, जो एयर उसको फिल कर रही है, जो उसका टाइडल वॉल्यूम उसको बहुत ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अच्छा, एक लिमिटिंग पॉइंट है कि जहां पे आके ये रैम्प सिग्नल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस इज द यूजुअल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, the earlier the ramp ceases the shorter the duration of inspiration। अगर बहुत रैपिड हो रहा है तो ये इसको बहुत जल्दी स्टॉप कर देगा ताकि बहुत ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में लंग का वॉल्यूम इंक्रीज ना हो। ठीक है, and the method also shortens the duration of expiration, the frequency of respiration is increased। ठीक है, ये रैम्प सिग्नल्स में क्या हो रहा है, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रैम्प सिग्नल्स जो है उसमें क्या हो रहा है कि रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, रैपिडली जो है वो लंग फिल भी हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, एपनियोस्टिक सेंटर, यहाँ पे हम देखेंगे एपनियोस्टिक सेंटर जो वो लोकेट करता है डॉर्सली इन द न्यूक्लियस पैराब्रैकियलिस ऑफ द अपर पोन्स। ये ट्रांसमिट करता है इंस्पिरेटरी
एरिया को, डॉर्सल ग्रुप को कुछ सिग्नल्स भेजता है, ठीक है। एपनियोस्टिक सेंटर बेसिकली क्या करता है, ये कंट्रोल करता है स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेटरी रैम्स। ये जो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स आ रहे हैं ना, उसको स्विच ऑफ, उसको बंद करा देता है, दस कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ फिलिंग फेज ऑफ लंग साइकिल। अब बेसिकली क्या कर रहा है, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे, रैम सिग्नल्स की जो क्वालिटीज हैं, ये एपनियोस्टिक सेंटर फौरन जो है वो इनिशिएट हो जाता है, ये इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद ये फौरन जो है उसको स्विच ऑफ कर देता है रैम सिग्नल्स को, ताकि लंग का जो फिलिंग फेज है जिसमें वो एयर अंदर फिल हो रही है, उसको, उसकी ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सके। इसे हम कह सकते हैं ये जो एपनियोस्टिक सेंटर है, ये एंटी इंस्पिरेटरी एंड प्रो एक्सपायरेटरी है, राइट। It limits the duration of inspiration and increase the respiratory rate. When the pneumotactic center signals are strong, inspiration might last for as little as 0.5 seconds, the filling the lungs only slightly. ये जो न्यूमोटैक्टिक सेंटर है, ठीक है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है, ये क्या काम कर रहा है, अगर इसके सिग्नल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुए तो इंस्पिरेशन जो है ना इसकी बहुत ही कम होगी और लंग जो है वो बहुत ज्यादा फिल नहीं होगा। अगर ये न्यूमोटैक्टिक सिग्नल्स वीक हो, इंस्पिरेशन माइट कंटिन्यू फॉर 5 सेकंड्स, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूमोटैक्टिक सिग्नल्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग 30 to 40 breaths per minute, whereas the weak pneumotactic signals may reduce the rate only 3 to 5 breaths per minute. तो अगर न्यूमोटैक्टिक सिग्नल्स जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, तो ब्रीदिंग रेट को जो है वो ज्यादा कर देंगे स्ट्रॉन्ग हुए तो, ठीक है। अगर ये न्यूमोटैक्टिक सिग्नल्स जो है वो वीक हुए तो ये ब्रीदिंग को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है ये क्या काम करता है, बेसिकली स्विच ऑफ कर देता है इंस्पिरेटरी रैम्स को, ताकि जो फिलिंग फेज है लंग साइकिल का वो कम हो सके और वो कंट्रोल हो सके। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, इसका फंक्शन है बोथ इंस्पिरेशन में भी एक्सपिरेशन के अंदर भी। ये कहाँ पर लोकेट है, ये एंटीरियर एंड लेटरल टू द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये इनएक्टिव, टोटली इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन। ये खामोशी से बैठा रहता है जब एक सब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेटरी उसमें होता है। डू नॉट अपीयर टू पार्टिसिपेट इन द बेसिक रिदमिकल ऑसिलेशन दैट कंट्रोल द रेस्पिरेशन। कहीं पे ये एक्टिवेट नहीं होता, कहीं पर ये आके पार्टिसिपेट नहीं करता। When the respiratory drive for increased pulmonary ventilation becomes greater than normal, it contributes extra respiratory drive. ये क्या काम करता है, ये यूपीएस वाला काम करता है। जब घर की लाइट चल रही होती है ना नॉर्मली, तो ये एक्ट नहीं करेगा, यूपीएस काम नहीं करता ना जब नॉर्मली लाइट होती है, लेकिन जैसे लाइट चली जाती है तो क्या होता है, फौरन यूपीएस ऑन हो जाता है। सिमिलरली हियर, व्हेन द सब्जेक्ट इज इन नॉर्मल क्वाइट रेस्पिरेशन, the ventral respiratory group of neurons or this area or this center is not participating, ठीक है। जब रेस्पिरेटरी ड्राइव बढ़ जाएगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा जरूरत होगी, it contribute as an extra respiratory drive due to the spilling of impulses from the dorsal area, ठीक है। And it contribute to both an inspiration and expiration and act as an overdrive mechanism when a high level of pulmonary ventilation is required. जब किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पल्मोनरी वेंटिलेशन की जरूरत होती है, कब होती है जनाब, जब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट एक स्पेसिफिकली इन हेवी एक्सरसाइज के अंदर चले जाए, ठीक है। हेयरिंग-ब्रुर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। अच्छा, हम 3 जो ग्रुप्स हमने डिस्कस किया है उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रुप डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये इनिशिएट क्या करता है, ये रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन को इनिशिएट कर रहा है, रैम सिग्नल्स करवाता है। रैम सिग्नल्स भी कंट्रोल होते हैं थ्रू रेट ऑफ रैम सिग्नल्स और द लिमिटिंग पॉइंट उसके जरिए। न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है वो क्या काम करता है, वो इंस्पिरेटरी रैम सिग्नल्स को स्विच ऑफ कर देता है। फिर हमने देखा कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो दोनों इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में काम करता है, स्पेशली तब जब किसी की जो है वो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा हो जाए, वहां पे रिक्वायर्ड हो, ठीक है। अब हेयरिंग-ब्रुर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स आ जाता है। सेंसरी नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द लंग्स आल्सो हेल्प कंट्रोल रेस्पिरेशन। अब हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ सेंसरी सिग्नल्स आते हैं डायरेक्ट फ्रॉम लंग, ये भी कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को, ठीक है। मस्कुलर पोर्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स थ्रू आउट द लंग, वहां पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल्स थ्रू वेगस नर्व वेगाई एंड द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन व्हेन द लंग इज ओवर स्ट्रेच्ड।
ये हेयरिंग ब्लड इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स क्या होता है ना, इनएप्रोप्रिएट फीडबैक रिस्पॉन्स होता है, ये स्विच ऑफ करता है अगेन इंस्पिरेटरी रैम्प्स को एंड स्टॉप्स फर्दर इंस्पिरेशन। यहाँ पे अगर देखें ना, अगर किसी सब्जेक्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर कर लिया है, लंग के अंदर वॉल्यूम आ चुका है, तो इसके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद है ना ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, ये यहाँ से सिग्नल्स भेजेंगे थ्रू वेगस नर्व और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ। when the lung is overstretched, जो वॉल्यूम अंदर ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से होगा क्या कि इसके अंदर ये एक फीडबैक रिस्पॉन्स भेजता है, ये स्विच ऑफ कर देता है इंस्पिरेटरी रैम्प्स को, ताकि फर्दर सब्जेक्ट जो वो इंस्पिरेशन ना कर सके, ठीक है। और ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इट कैन कॉजेज इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट, राइट, एंड दिस रिफ्लेक्स ऑपरेट्स only when the lungs are overinflated, more than 3 times increase in the tidal volume. Tidal volume, अगर tidal volume कितना होता है नॉर्मली 500 ml होता है, लेकिन अगर ये 1.5 लीटर से ज्यादा होना शुरू हो जाए वॉल्यूम इन द लंग, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हेयरिंग ब्लड इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स फौरन काम करेगा और कहेगा कि जनाब ये स्विच ऑफ करें, डैम सिग्नल्स को इससे ज्यादा इंस्पायर ना करें। लंग के स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होकर सिग्नल्स भेज चुके हैं और यहाँ पर आके ये सिग्नल्स इसको स्टॉप कर देंगे, राइट। हम आ जाते हैं एपनियोस्टिक सेंटर के अंदर। एपनियोस्टिक सेंटर भी प्रो इंस्पिरेटरी है, ये पोटेंशिएट करता है बेसिकली इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स को, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है एपनियोस्टिक सेंटर? वंस इट इज स्टिमुलेटेड, इट कॉजेज प्रोलॉन्ग फायरिंग बाय द इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स इन द मेडुला, और ये एपनियोसिस एक एबनॉर्मल ब्रीदिंग प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आ जाती है, बहुत बड़ा पॉज आ जाता है। Stimulation of this center causes simultaneous activation of pneumotactic center and which causes cessation of inspiration. होता है कि एपनियोस्टिक सेंटर होता तो बेसिकली एक डिजीज में ज्यादातर ये स्टिमुलेट होता है, लेकिन ये जैसे स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर को भी स्टिमुलेट कर देता है। न्यूमोटैक्टिक का काम है कि वो इंस्पिरेटरी सिग्नल्स को जो है वो स्टॉप कर दे, सीज कर दे और एक्सपायरेशन कराना शुरू कर दे। अच्छा, ये इनहिबिट भी हो जाता है बाय द वेगल इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम द लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। तो लंग से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आ रहे होते हैं वो भी इसको इनहिबिट कर देते हैं एपनियोस्टिक सेंटर को, और ये ज्यादातर एक्टिवेट होता है जब ब्रेन इंजरीज हो जाती हैं या किसी डिजीज स्टेट के अंदर ये ज्यादा स्टिमुलेटेड होता है, जिसपे बहुत प्रोलॉन्ग सी जो है वो इंस्पिरेटरी साइकिल ज्यादा हो जाती है। एपनियोस्टिक सेंटर का जो बेसिकली जो फंक्शन है हाइपोथेटिकल है, किसके कनेक्शंस हैं बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि ये स्टिमुलेट करता है इंस्पिरेटरी सेंटर्स को ज्यादा, ठीक है, जबकि ये न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो उसको आके इनहिबिट करता है। ये बेसिकली इंस्पिरेशन को बहुत प्रोलॉन्ग कर देता है, विच इज नॉट नीडेड इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। ऑटोनॉमिक सप्लाई ऑफ लंग, ये सिंपैथेटिक डिवीजन है इसकी, कुछ पैरासिम्पैथेटिक है। हमने जो भी बात की थी कि वेगस के जरिए आती है, ग्लॉसोफेरेंजियल के जरिए आती है, तो दिस इज, ठीक है, ये लंग से स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये सिग्नल्स लेकर चले जाते हैं यहाँ पे। केमिकल कंट्रोल भी है रेस्पिरेशन का, हमने नर्वस कंट्रोल को पढ़ा था, ठीक है, और नर्वस कंट्रोल में केमिकल कंट्रोल के अंदर भी फिर एक नर्वस कंट्रोल है और फिर एक केमिकल कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। जो सबसे पहले हमने नर्वस कंट्रोल पढ़ा उसमें हमने सेंटर्स को डिस्कस किया था, ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिस्कस किया है, हमने पेरिफेरल सेंटर्स जो है फ्रॉम द लंग्स, जैसे कि हमने अभी स्ट्रेच रिसेप्टर्स की बात की थी अभी, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे अगेन नर्वस कंट्रोल है दैट controls the rhythm of respiration and the rate of respiration, and here again a chemical control that controls the depth of respiration in different conditions like exercise. So respiratory activity is highly responsive to the changes in concentration of oxygen, carbon dioxide and hydrogen ion in the tissues. So respiratory activity जो है ना, basically जो हम chemical control की बात करें तो we are talking about these three chemicals like oxygen, carbon dioxide and hydrogen. इनकी concentration के ऊपर depend करता है कि respiratory activity जो है वो किस तरह की है। Chemical control again divided into central and peripheral, ठीक है। सेंट्रल का मतलब ये कि ऐसे केमिकल्स जो सेंट्रली डायरेक्ट ब्रेन पे अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरल एरियाज पे कर रहे हैं, ठीक है, लाइक लंग्स हैं या हम देखेंगे कैरोटिड बॉडीज हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू द चेंजेस इन दीज केमिकल और कंसंट्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन
excess carbon dioxide or excess hydrogen in the blood mainly act directly on the respiratory centers, जिसे हम कहते हैं ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाए, हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए, इसका मतलब वो सब्जेक्ट एसिडोसिस के अंदर हो, तो ये डायरेक्ट जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना ब्रेन के, उसको अफेक्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। ऑक्सीजन जो है ना एक्ट इनडायरेक्टली करती है थ्रू पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, वो कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज में देखते हैं हम इसको। एओर्टिक बॉडीज जो आर्क ऑफ एओर्टा में होती है, कैरोटिड बॉडीज होती हैं वो कॉमन कैरोटिड आर्टरीज के अंदर, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। In turn transmit appropriate nervous signals to the respiratory centers for control of respiration. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये दो डायरेक्टली ब्लड में अगर ज्यादा है तो डायरेक्ट ब्रेन को अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये पहले तो जाके कैरोटिड और एओर्टिक को पेरिफेरली जाके उनको स्टिमुलेट करती है, उसके बाद वहां से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन की तरफ, ऊपर सेंटर्स की तरफ, रेस्पिरेटरी सेंटर्स की तरफ, ताकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब कीमोसेंसिटिव एरियाज रेस्पिरेटरी सेंटर्स में होते हैं बीनीथ द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला। अब रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए हुए, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर्स हैं। ये तीनों जो सेंटर्स हैं मेन, नन ऑफ दीज इज अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द चेंज इन ब्लड CO2 कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन। ये डायरेक्टली सेंटर्स खुद नहीं होते, कुछ कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं इन सेंटर्स के अंदर, ये बायलैटरली मौजूद होते हैं, ये 0.2 mm beneath the ventral surface of medulla मौजूद होते हैं। पहले ये कीमो सेंसिटिव एरियाज जो हैं वो जो है वो सेंसिटिव एरियाज वो पहले अफेक्ट होंगे, उसके बाद जाके ये कंसंट्रेशन इन सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है। द एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन ईदर ब्लड PCO2 or hydrogen ion concentration, and it in turn excites the other portion of respiratory centers. तो अगर हम ये कहें कि जी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करती है, ठीक, लेकिन जब इसकी डीप स्टडी में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला में कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स के, ठीक है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बायलैटरली मौजूद हैं वो, ठीक है। पहले वो कीमो सेंसिटिव एरियाज जो वो अफेक्ट होते हैं, उसके बाद वो इनडायरेक्टली जाके उनको करते हैं। तो डायरेक्टली जो है ये सब्सटेंसेस, ये जो आयंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोजन है, वो डायरेक्टली इनको नहीं करते, थ्रू कीमो सेंसिटिव एरियाज ये अफेक्ट हो रहे हैं। ये इंस्पिरेटरी एरिया था, ये कीमो सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। अब होता क्या है कि हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये कार्बोनिक एसिड बन रहा है, उसके बाद हमने देखा कि जी कार्बोनिक एसिड ने फिर डिसोसिएट किया हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट। अब हम पहले ये बात करते थे कि जनाब हाइड्रोजन जो है ना वो प्राइमरीली, सबसे पहले हाइड्रोजन ऐसा है प्राइमरीली जो कि कीमो सेंसिटिव एरियाज को स्टिमुलेट करता है, लेकिन जब हम इसको डीपली देखते हैं तो हाइड्रोजन इज नॉट एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, वो जाके वहां पे CSF के साथ और मेडुला के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ ज्वाइंट होता है, वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, वहीं पे जाके ब्रेन के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और CSF के साथ मिलके वहां पे उस कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन होती है। अब क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस हो चुका है, अब वहां पे जाकर ये फिर डिसोसिएट होता है into an bicarbonate and hydrogen. Now this hydrogen ion is going towards this area और इस एरिया में जाके ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो इसको जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एक्साइटेशन ऑफ, ये मैंने इसलिए डायग्राम में समझा दिया ताकि जब हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाए। So excitation of chemosensitive neurons by hydrogen ion, the primary stimulus. यही बात हमने की थी, कहते हैं कि जी प्राइमरी स्टिमुलस है हाइड्रोजन, जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ना वो स्पेशली एक्साइट होता है बाय द हाइड्रोजन। बिल्कुल ठीक बात है, हमने तो डायग्राम में देख लिया, ये उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी कुछ और है, ठीक है। तो हाइड्रोजन मे बी द ओनली इंपॉर्टेंट डायरेक्ट स्टिमुलस फॉर दीज न्यूरॉन्स, बट हाइड्रोजन आयन डू नॉट इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। Therefore, hydrogen ion concentration in the blood have less effect in stimulating the chemosensitive neurons. अगर ब्लड में हाइड्रोजन ज्यादा है तो कीमोसेंसिटिव न्यूरॉन को जो है इतना अफेक्ट नहीं कर सकता जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करता है न्यूरॉन्स को सेकेंडरीली बाय चेंजिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कैसे होता है जनाब ये?
कार्बन डाइऑक्साइड पोटेंट इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जैसे हमने इस डायग्राम में डिस्कस किया था, ये पोटेंट है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली है, ठीक है। इट एक्ट रिएक्ट विद द वाटर ऑफ द टिश्यू, कार्बोनिक बनाया इसने, एसिड बनाया, फिर हाइड्रोजन का वो बना, उसके बाद उसे देखा कि हाइड्रोजन अब जाकर वो पोटेंशियली पोटेंट डायरेक्ट स्टिमुलेटिव इफेक्ट है ऑन द रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर से हाइड्रोजन तो जा नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड इजीली इसको क्रॉस करता है, और उसको क्रॉस करने के साथ साथ अगर ब्लड के अंदर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है, सो PCO2 ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एट द मेडुला ऑफ द CSF, अभी जो हमने डिस्कस किया था, ये सारे के सारे जो हैं वो जाके मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन बनाया, अब इसने रेस्पिरेटरी कीमो सेंसिटिव एरियाज को इस हाइड्रोजन ने स्टिमुलेट किया, ठीक है। So respiratory center activity is increased very strongly by the change in blood CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड की बेसिकली कहानी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक्साइटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज great the first few hours after the blood concentration of this carbon dioxide first increases. रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है ना वो फौरन एक्साइट होना शुरू हो जाता है विद इन फ्यू आवर्स। अगर तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है नेक्स्ट 1 or 2 days, और बाद में जाके वो इनिशियल स्टिमुलेंट्स के 1/5 जाके बचता है, ठीक है। होता क्या है कि किडनी बेसिकली अपनी रीएडजस्टमेंट शुरू कर देती है, इंक्रीजिंग द ब्लड ये बाइकार्बोनेट टू फॉर्म। It bind with the hydrogen in the blood and CSF to reduce the concentration. अब हमने क्या देखा कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है एक्साइट तो हो गया था, अगर ब्लड में किसी देखा हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है शुरू के 2-4 घंटों के अंदर, फिर हमने देखा कि जनाब ये तो डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब किडनी ने अपनी रीएडजस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, किडनी ने जो है वो बाइकार्बोनेट बना बना के ब्लड में डालना शुरू कर दिया है, वहाँ ब्लड में जा रहा है, वो हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है इन द ब्लड, ठीक है, वहां से ये बनता हुआ CSF की तरफ जा रहा है, और वहां से वो उसकी कंसंट्रेशंस को रिड्यूस कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स। कुछ ही घंटों के अंदर हम देखते हैं बाइकार्बोनेट स्लोली डिफ्यूज थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड द ब्लड CSF बैरियर, ये कंबाइन हो रहा है डायरेक्टली विद द हाइड्रोजन एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। वहां पर भी कुछ जो है वो बाइकार्बोनेट, तो आप देखें ना, पहले तो बाइकार्बोनेट वैसे बनना था, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने बनाना था, फिर किडनी ने जब रीएडजस्टमेंट की तो उसने डायरेक्ट ब्लड में भेजा, बाइकार्बोनेट भी इजीली जो उसको क्रॉस करके जा रहा है ब्रेन की तरफ, वहां पे जाके वो जो है वो डिसोसिएट भी हुआ, और वहां पे मौजूद हाइड्रोजन के साथ भी बना, और फाइनली उसने हाइड्रोजन के साथ जाके जब वो बाइकार्बोनेट मिलता है तो वो उसने कार्बोनिक एसिड बना दिया। अब वो उस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बैक टूवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहा है, किडनी की रीएडजस्टमेंट। A change in the blood CO2 concentration, therefore the potent acute effect in controlling the respiratory drive. अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के अंदर चेंज आ जाती है तो ये एक्यूटली इफेक्ट करता है, ये रेस्पिरेटरी ड्राइव को फौरन कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे ये कोशिश करता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसका इफेक्ट थोड़ा वीक हो जाता है, क्रॉनिक इफेक्ट विद इन फ्यू डेज आफ्टर एडाप्टेशन, क्योंकि किडनी ने अपनी एडजस्टमेंट शुरू कर दी थी, किडनी ने बाइकार्बोनेट बना बना के भेजा था ताकि वहां पे मौजूद हाइड्रोजन के साथ बाइंड करे और हाइड्रोजन को कम करे वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इंक्रीज अगर आर्टीरियल PCO2 है एंड डिक्रीज आर्टीरियल पीएच है, मतलब इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एट द रेट ऑफ एल्वुलर वेंटिलेशन। यहाँ पे हमें y एक्सिस में नजर आ रहा है एल्वुलर वेंटिलेशन, x एक्सिस में हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें PCO2 भी नजर आ रही है, हमें pH भी नजर आ रही है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जो PCO2 और 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एल्वुलर वेंटिलेशन जो है ना वो भी ग्राफ में जो वो 1 पे आके कंट्रोल होती है, ठीक है, ये बेसल लेवल उसकी जो रेट है वो 1 पर है। लेकिन वंस वी आर चेकिंग दीज थिंग्स कि यहाँ पर अगर pH जो है वो कमी की तरफ जा रही है, दैट मींस देयर इज इंक्रीज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर ज्यादा हो रही है तो क्या रहा है, एल्वुलर वेंटिलेशन भी ज्यादा हो रही है, और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो वेंटिलेशन भी ज्यादा है, PCO2 भी ज्यादा हो रही है, और फिर यहाँ पे pH जो है वो भी कमी की तरफ जा रही है, मतलब एसिडोसिस की तरफ बनता जा रहा है। अनइम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। होता है क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर सिस्टम भी है, ठीक है।
अब बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होती है, ये बेसिकली क्या करता है, ये नॉर्मल अमाउंट में ऑक्सीजन को डिलीवर करता है एग्जैक्टली टिश्यू की तरफ, इवन व्हेन द पल्मोनरी ऑक्सीजन और जो PO2 होती है, चेंजेस फ्रॉम अ वैल्यू एज लो एज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एज हाई एज 100, चाहे जितनी मर्जी इनके बीच में चेंज आ जाए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर सिस्टम टिश्यूज को अपनी ऑक्सीजन पूरी पहुंचा रहा होता है, चाहे बहुत कम हो जाए चाहे बहुत ज्यादा हो जाए. Adequate delivery of oxygen can occur despite change in the lung ventilation, ranging from 0.5 times as much as high 20 times of the normal. ठीक है, अब ये क्या किसका काम है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफर सिस्टम का काम है कि अपनी ऑक्सीजन की डिलीवरी ठीक पहुंचाए. ये चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं है. ठीक है, because the blood and tissue PCO2 changes are related inversely with the rate of pulmonary ventilation. अब pulmonary ventilation के अंदर change के साथ ही ये जो blood का PCO2 है या tissue का PCO2 है, ये pulmonary ventilation के बिल्कुल opposite काम करता है. ठीक है, so carbon dioxide is the major controller of respiration, not oxygen. Oxygen तो देखो जहाँ पे कमी है उधर भी पहुंच रही है, ज्यादा हो गई तब भी टिश्यू को अपनी जरूरत के हिसाब से मिल रही है. ठीक है, लेकिन PCO2 के अंदर कोई चेंज होती है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर, रेट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी रेट्स के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, a change in blood carbon dioxide concentration therefore have potent acute effect on controlling respiratory drive, but only a weak chronic effect after a few days adaptation. ठीक है, ये इसका मेन है कि जो मेन कंट्रोलर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. अब की पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर की तरफ देखते हैं. हमने सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स में देखा कि वहां पे कीमो सेंसिटिव एरिया था जो कि सेंस कर रहा था. प्राइमरीली हमने देखा हाइड्रोजन को, लेकिन फिर हमने देखा कि जनाब हाइड्रोजन तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है. वो क्रॉस करके आता है मेडुला के इंटरस्टेशियल के साथ, CSF के साथ मिलके वाटर के साथ वो बाइकार्बोनेट बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है. देन दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएटेड इनटू एन बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन. दिस हाइड्रोजन प्राइमरीली नाउ stimulate this chemosensitive area. उसके बाद हमने देखा कि जो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सेकेंडरीली पोटेंट है. ठीक है, प्राइमरीली कौन था, हाइड्रोजन था. फिर जैसे ये कीमोसेंसिटिव एरिया अपना काम करना शुरू कर देता है तो विद इन फ्यू आवर्स तो ये बड़ा एक्टिवली काम करता है. बाद में क्या होता है कि यही कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये अपना काम कर रहा है, लेकिन ब्लड के PCO2 को फिर किडनी रीएडजस्ट करती है. किडनी बाइकार्बोनेट बना कर भेज रही होती है टूवर्ड्स ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस करती है इसको, वहां पे वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वहां पे उसकी हाइड्रोजन की लेवल को कम करती है. नाउ कम्स टूवर्ड्स पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर सिस्टम. स्पेशल नर्वस की केमिकल रिसेप्टर्स हैं. ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स लोकेटेड सेवरल एरियाज एंड आउटसाइड द ब्रेन. ठीक है, दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग द चेंजेस इन द ऑक्सीजन इन द ब्लड. अब हम ये इन कीमो रिसेप्टर्स, केमिकल रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की चेंज को जो है वो सेंस कर रहा है. Although they also respond to a lesser extent to change in the CO2 and hydrogen concentration. So these chemoreceptors transmit nervous signals towards the respiratory center in the brain to help regulate respiratory activities. And most of the chemoreceptors are the carotid bodies and fewer are in the aortic bodies. अब ये हो गए peripheral chemoreceptors. So this peripheral chemoreceptors are present in carotid bodies. Most of these receptors are in carotid bodies and few chemoreceptors are in aortic bodies. Carotid bodies भी हम देखेंगे, carotid arteries में जो है वो मौजूद है. And the efferent nerve fibers passes through hearing nerves and glossopharyngeal nerves, the dorsal respiratory area of the medulla. Aortic bodies are located along the arc of aorta. Their efferent nerve fibers pass through the vega and to the dorsal medullary respiratory area. यहाँ पे हमें नजर आएगा aortic bodies भी और उसके बाद carotid bodies भी नजर आ रही हैं हमें. हम इन carotid bodies को देख रहे हैं कि ये bifurcation of carotid arteries मौजूद है. And here it is aortic bodies in the arc of aorta. अच्छा, एओर्टिक बॉडीज में हम देखेंगे कि ये एओर्टिक बॉडीज जो है वो आर्क ऑफ एओर्टा में जो ये डायरेक्ट सिग्नल्स लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द ब्रेन मेडुला. और यहाँ पर जो हम कैरोटिड को देख रहे हैं ये थ्रू जो है कैरोटिड बॉडीज, ये थ्रू जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल भी काम कर रही हैं और एओर्टिक बॉडीज जो है वो थ्रू वेगस भी काम कर रही है. तो यहाँ पे हमें ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व की भी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है.
अब कैरोटिड बॉडीज जो है वो स्पेशल ब्लड सप्लाई ये रिसीव करती हैं, स्पेशल ब्लड सप्लाई थ्रू द माइन्यूट आर्टरीज डायरेक्टली फ्रॉम द एडजेसेंट आर्टीरियल ट्रंक। वहां पर जो आर्टीरियल ट्रंक होता है वो माइन्यूट सी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी, वहां से ये अपना ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई जो वो रिसीव कर रही हैं। सो जो ब्लड फ्लो होता है दीज बॉडीज इतना एक्सट्रीम होता है, 20 गुना ज्यादा होता है इन बॉडीज के मुकाबले में इसके वेट के हिसाब से, तो वहां से वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रॉम द फ्लोइंग ब्लड इज वर्चुअली जीरो। This means these chemoreceptors are exposed at all time to arterial blood, not a venous blood, and their PO2 are arterial PO2, ठीक है, तो वो उनका तो arterial PO2 हो गया। Decreased arterial oxygen stimulates the chemoreceptors. When the oxygen concentration in the arterial blood falls below normal, the chemoreceptors become strongly stimulated. अब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर आर्टीरियल ब्लड के अंदर फॉल कर जाती है ना, बिलो नॉर्मल हो जाती है, तो फौरन ये कीमो रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये रिसीव नहीं कर रहे वहां से ऑक्सीजन को, ठीक है, लेकिन अगर वो बिलो नॉर्मल हो गई तो वो फौरन स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। द इम्पल्सेस इज पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू चेंज इन आर्टीरियल PO2 इन अ रेंज ऑफ 60 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर PO2 का जो रेंज है ना मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, 60 से 30 आ जाएगा, और या हम रेंज इन विच द हीमोग्लोबिन सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो ये शो करता है फौरन जो है वो आर्टीरियल PO2 एंड द रेट ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये फौरन कैरोटिड बॉडीज में जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये कैरोटिड बॉडी के नर्व इम्पल्सेस हैं पर सेकंड के हिसाब से, और ये आर्टीरियल PO2 है। आर्टीरियल PO2 जैसे ही फॉल की तरफ जाती है फौरन इसकी इम्पल्सेस जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये भी स्टिमुलेट कर रही हैं कीमोरिसेप्टर्स को। इंक्रीज ईदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों एक्साइट करती है कीमोरिसेप्टर को इनडायरेक्टली, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट इन दोनों का कौन सा है? फैक्टर्स इन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इटसेल्फ मोर पावरफुल देन द मीडिएटेड बाय द कीमोरिसेप्टर्स। इनका जो डायरेक्ट इफेक्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, वो तो बड़ा डायरेक्ट है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हालांकि कीमोरिसेप्टर के मुकाबले में उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ये भी एक इफेक्ट है, वो 7 टाइम्स एज पावरफुल है, ठीक है। The difference between the peripheral and central effect of carbon dioxide, the stimulation by the way of peripheral chemoreceptors occurs as much as 5 times as rapidly as central stimulation. वो रैपिडिटी में केमिकल जो वो ज्यादा है, लेकिन वो क्वांटिटी में अगर उसकी जो कंसंट्रेशंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की, वो कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो वो एक्टिवली काम करता है, ठीक है। The peripheral chemoreceptors be especially important, increase the rapidity of response to carbon dioxide at the onset of exercise. ये rapidity में काम करता है peripheral chemoreceptors, ठीक है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो onset of exercise पे जब वो थोड़ा सा नजर आना शुरू होता है कि ये ज्यादा हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है सेल का, उस वक्त फौरन पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर सेंस करते हैं कि जनाब ये रैपिडली उसका जो है वो सिग्नल जाए टुवर्ड्स ब्रेन। Basic mechanism क्या है? Stimulation of chemoreceptors by the oxygen deficiency। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो फौरी तौर पे वो उसको किस तरह से जो है वो करते हैं, सेंस किस तरह कर रहे हैं। These bodies have multiple highly characteristic glandular like cells। ये जो बॉडीज होती है ना कैरोटिड बॉडीज, ये उनके पास जो है कुछ सेल्स होते हैं जिनको ग्लोमस सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द नर्व एंडिंग्स। ये ग्लोमस सेल, ये ग्लोमस सेल का जो फंक्शन है ना एज अ कीमो रिसेप्टर खुद काम कर रहा है, ये स्टिमुलेट करते हैं नर्व एंडिंग्स को। ग्लोमस सेल्स जो है जो इन कैरोटिड बॉडीज या हम कहें कि इनको एओर्टिक बॉडीज के पास जो मौजूद है, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव उनके पास पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, दैट आर इनएक्टिवेटेड व्हेन द ब्लड PO2 डिक्रीजेस मार्कली, ठीक है, एंड सेल डीपोलराइज। इट ओपन्स the voltage gated calcium channels, increase intracellular calcium ion concentration। ये एक डायग्राम में मैं आपको समझाती हूँ। ये ग्लोमस सेल्स है, ठीक है। ग्लोमस सेल्स जो है वो नर्व फाइबर है, एफरेंट नर्व फाइबर, ये इसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। ये अगर ब्लड के अंदर PO2 डिक्रीज है
ठीक है। ये अगर PO2 डिक्रीज होती है तो क्या हो जाता है, ये पोटेशियम सेंसिटिव, जो पोटेशियम चैनल है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ठीक है। अब PO2 कम है तो इसने ये इनएक्टिव हो गए पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल इनएक्टिव हुए तो इसने क्या कर दिया, इन टर्न इट कैन कॉज एक्टिवेट द इंक्रीज कैल्शियम एंट्री इनसाइड दिस ग्लोमस सेल्स। कैल्शियम जब ज्यादा इसके अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये एसिटाइलकोलिन भी रिलीज करते हैं, ये डोपामिन भी रिलीज करते हैं, ये एटीपी भी रिलीज करते हैं, ये ग्लोमस सेल्स। ये जब एसिटाइलकोलिन और एटीपी यहाँ से रिलीज होगा तो ये इन एफरेंट फाइबर्स के ऊपर अपने रिसेप्टर के साथ दोनों जाके लगेंगे, अटैच हो जाएंगे। यहाँ से ये सिग्नल भेजेंगे टूवर्ड्स दिस ब्रेन कि जनाब ऑक्सीजन कम हो चुकी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इफेक्ट ऑफ लो arterial PO2 on the alveolar ventilation when the PCO2 and hydrogen concentration are kept constant at their normal levels. अब अगर PO2 कम है उसका alveolar ventilation के ऊपर इफेक्ट, ठीक है, उसका इफेक्ट। हालांकि हम देख रहे हैं PCO2 हाइड्रोजन जो है वो कांस्टेंट है नॉर्मल लेवल पे। इन अदर वर्ड्स हम देखें कि ओनली द वेंटिलेटरी ड्राइव ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन ऑन द कीमोरिसेप्टर इज एक्टिव। हमने देखा कि जो लो ऑक्सीजन को कीमोरिसेप्टर ने सेंस किया, वहां से कैल्शियम पोटेशियम की एंट्री बंद कर दी, कैल्शियम की एंट्री बढ़ा दी, एसिटाइलकोलिन और एटीपी को निकाल के इफ्रन के साथ अटैच किया, सिग्नल्स भेजे। उस सिग्नल भेजने की वजह से हुआ क्या कि वेंटिलेटरी ड्राइव इंक्रीज हो गई। ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन वेंटिलेशन एज लॉन्ग एज द आर्टीरियल PO2 रिमेन ग्रेटर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वेंटिलेटरी ड्राइव भी उस वक्त काम नहीं करेगी जब PO2 जो है ना वो अगर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर होगा। बट at pressure lower than 100 वेंटिलेशन अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है, सब्जेक्ट बड़े बड़े सांस लेता है। अगर PO2 जो 60 पे फॉल कर जाती है and can increase as much as 5-fold to a very low PO2, ठीक है, तो वो और वेंटिलेशन इंक्रीज होता है। अंडर दीज कंडीशंस लो आर्टीरियल PO2 ड्राइव्स द वेंटिलेटरी प्रोसेस क्वाइट स्ट्रांगली। तो हम कह सकते हैं कि जो लो PO2 है अगर 100 पर आ जाती है तो वेंटिलेशन को वो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर ये 100 से नीचे आती है तो उसको और डबल कर देती है, 60 से नीचे आती है तो 5 गुना ज्यादा कर देती है। और इन कंडीशंस में वेंटिलेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है ताकि सब्जेक्ट लंबी वेंटिलेशन करे और इंस्पिरेशन को ज्यादा करे, ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करे। यहाँ पे हमें वाई एक्सिस में दो चीजें नजर आ रही हैं। एल्वेलर वेंटिलेशन नजर आ रही है, हालांकि इसका जो नॉर्मल रेट है वो 1 तक है, ये रहा, ठीक है। हमें यहाँ पे एल्वेलर PCO2 नजर आ रही है जो कि 40 पर है, ये ग्रीन लाइन से हमें नजर आ रहा है। हमें आर्टीरियल PO2 जो है वो नजर आ रही है कि जी ये 100 तक है, ठीक है, और मोर देन 100 है, ये नॉर्मल है। और उसके अलावा हम वेंटिलेशन के प्रोसेस को भी देख रहे हैं इसमें। अब होता है कि अल्वेलर वेंटिलेशन हमने कहा कि नॉर्मल 1 तक है। अल्वेलर वेंटिलेशन बढ़ती कब है, जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन गिरना शुरू हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन अगर 60 से नीचे आई है तो अल्वेलर वेंटिलेशन इंक्रीज हो गई। हमने कहा जनाब ये अल्वेलर वेंटिलेशन नॉर्मल 1 पे होती है, लेकिन अब ये बढ़ के ऊपर जा रही है, यहाँ पर आ रही है 6 तक आ रही है। कब, जब यहाँ पे ये 60 पे अल्वेलर PO2 आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अल्वेलर PCO2 को इतना फर्क नहीं पड़ता उससे। क्रॉनिक ब्रीदिंग ऑफ लो ऑक्सीजन ये स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेशन को इवन मोर, जिसे हम एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, मतलब एडाप्टेशन, मतलब हम एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं ना, जो आहिस्ता आहिस्ता माउंटेन्स पे चढ़ना शुरू करते हैं स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ डेज रादर देन आवर्स, घंटों में नहीं चढ़ते, उनको दिन लगते हैं बहुत सारे। दे ब्रीथ मच मोर डीपली, therefore they withstand within far lower atmospheric oxygen concentration। और इससे हम कहते हैं जो ascent करते हैं ना रैपिडली, उनके मुकाबले में वो इतना जल्दी एक्लिमेटाइज, इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते जितना माउंटेन क्लाइंबर्स जो है वो लो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे होते हैं और वो उस पे जो विदस्टैंड कर लेते हैं, वो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, वो उसको एक्लिमेटाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं, रेड कर्व्स हैं और ग्रीन कर्व्स हैं। हम देख रहे हैं जो रेड कर्व्स हैं ये बेसिकली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो उसको शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 40, 50, 60 एंड 100 पे। सिमिलरली हमने देखा कि यहाँ पे ये PO2 है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हम ये भी चीज देख रहे हैं कि जो PCO2 है वो भी जो है उसकी वजह से चेंज हो रही है, ठीक है। PCO2 भी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन में भी चेंजेस आ रही है। तो ये कंपोजिट फैक्ट है PCO2 और pH, या हम हाइड्रोजन कहें या PO2 का अल्वेलर वेंटिलेशन। सो अगर PO2 भी कमी की तरफ आ रही है, अल्वेलर वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगी। अगर PCO2 ज्यादा हो रही है, ये भी अल्वेलर वेंटिलेशन को इंक्रीज करेगी, ठीक है।
रीजन क्या है एक्यूमुलेटेड डिजीज विद इन 2 or 3 days क्यों अडॉप्ट करते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में होते हैं ना, ब्रेन स्टेम में, ये लूज करते हैं 4/5 ऑफ इस सेंसिटिविटी, इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है टू चेंज द PCO2 एंड हाइड्रोजन. नो मोर इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. बेसिकली क्या, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ऐसे ही है. So low oxygen can drive the respiratory system to a much more higher level of alveolar ventilation. ठीक है. So एक्यूमुलेटाइजेशन तो इसलिए हो गई ना कि उनकी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो सेंसिटिविटी तो उतनी कम हो गई, लेकिन लो ऑक्सीजन जो है वो ड्राइव करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू हाई लेवल ऑफ alveolar ventilation. alveolar ventilation ज्यादा भी, उन्होंने बहुत ज्यादा PCO2 को बाहर निकाला. So alveolar ventilation often increases 400 to 500% after 2-3 days of low oxygen. वेंटिलेशन बढ़ जाएगी, PCO2 और हाइड्रोजन को इतना फर्क नहीं पड़ेगा. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज. अब एक्सरसाइज में किस तरह रेगुलेट करती है ये? स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ऑक्सीजन कंजप्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है ये 20 गुना बढ़ जाएगी. हेल्दी एथलीट्स में अल्वेलर वेंटिलेशन ऑर्डिनली इंक्रीज करती है ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन स्टेप्स विद इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जो हेल्दी एथलीट्स होते हैं. आर्टीरियल PO2, PCO2 और हाइड्रोजन, यहाँ pH क्या रिमेन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नॉर्मल हेल्दी एथलीट के अंदर. सो नन ऑफ दीज बिकम एबनॉर्मल इनफ टू स्टिमुलेट रेस्पिरेशन. अगर नॉर्मल एक्सरसाइज करा नहीं होगा, लेकिन ये चीजें हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे जब एक सब्जेक्ट एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा, उसके एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज में ये चीजें एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी. एटलीस्ट वन इफेक्ट सीम्स टू बी प्रीडोमिनेंट. क्या चीज इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? brain upon transmitting motor impulses to the exercising muscles. brain जो है वो motor impulses भेज रहा है exercising muscle की तरफ जा रहा है, तब भी तो muscles काम कर रहे हैं. and that believed to transmit collateral impulses into the brain stem at the same time to excite the respiratory centers. अब brain motor impulses भी भेज रहा है ताकि exercising muscles को जो वो impulses मिले. फिर सिमिलरली कोलेटरल इंपल्सेस ब्रेन स्टेम की तरफ भी आ रही हैं ताकि रेस्पिरेटरी सेंटर भी एक्साइट हो. दिस एक्शन इज एनालॉगस टू स्टिमुलेशन ऑफ वेजोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन स्टेम ड्यूरिंग एक्सरसाइज. और ये वही वेजोमोटर सेंटर है जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है वो आर्टीरियल प्रेशर को भी जो है वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज करता है. व्हेन अ पर्सन बिगिन टू एक्सरसाइज, जब भी एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा, वेंटिलेशन बिगिन immediately before any blood chemical had time to change. ठीक है. It is likely that the most increase in respiration result from neurogenic signals. ये जो ज्यादा वेंटिलेशन स्टार्ट हो रही है वो न्यूरोजेनिक सिग्नल्स की वजह से, ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू द ब्रेन स्टेम रेस्पिरेटरी सेंटर. एट द सेम टाइम द सिग्नल्स गो टू द बॉडी मसल टू कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे ज्यादातर जो है वो न्यूरोजेनिक सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन स्टेम की तरफ ताकि मसल जो है, रेस्पिरेटरी मसल जो है वो भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें. अब केमिकल फैक्टर्स और नर्वस फैक्टर्स का इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या इंटर रिलेशन है? व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइज, डायरेक्ट नर्वस सिग्नल स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर को ऑलमोस्ट टू सप्लाई द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइज एंड टू ब्लो ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, सबसे पहले नर्वस सिग्नल जाएंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा. सो नर्वस सिग्नल control signals are either too strong or too weak. ठीक है. केमिकल फैक्टर जो वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं. फाइनल एडजस्टमेंट जो होती है ना रेस्पिरेशन की, टू कीप द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी फ्लूइड एज नॉर्मल एज पॉसिबल. तो केमिकल फैक्टर्स बेसिकली काम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे. तो पहले नर्वस सिग्नल काम करेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा. फिर केमिकल फैक्टर्स ये काम करते हैं कि ब्लड के अंदर इनकी लेवल्स को नॉर्मल रखें. ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा एक्सरसाइज करते करते मरी जाए ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये तो नहीं हो सकता ना. तो ये केमिकल फैक्टर्स क्या करते हैं, इन सबको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं. एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज अल्वेलर वेंटिलेशन इंक्रीज होती है, एक सब्जेक्ट ज्यादा करता है, वेंटिलेट ज्यादा करता है. इनिशियली PCO2 इंक्रीज होता है विदाउट इनिशियल इंक्रीज इन PCO2. ठीक है.
एंड दिस इंक्रीज इन वेंटिलेशन इज यूजुअली ग्रेट इनफ एट फर्स्ट, पहले ज्यादा होगी, फिर ये आर्टीरियल PCO2 को कम करेगा और फिर उसको नॉर्मल कर देगा, क्योंकि वेंटिलेशन ज्यादा करते हुए वो PCO2 को बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिमिलरली ब्रेन जो वो एंटीसिपेटरी स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा अल्वुलर वेंटिलेशन ली उसने जो कि उस वक्त जरूरी थी, फिर बाद में 30 से 40 सेकंड के अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द ब्लड फ्रॉम द एक्टिव मसल्स, उसके बाद इंक्रीज रेट ऑफ वेंटिलेशन, आर्टीरियल PCO2 रिटर्न्स एसेंशियली टू नॉर्मल इवन एन एक्सरसाइज कंटिन्यू। तो बड़ा आसान सा हल है, एक सब्जेक्ट एक्सरसाइज कर रहा है, मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा इनहेल किया, वेंटिलेशन ज्यादा भी हुई और फिर वो ऑक्सीजन यूज हो गई, यूज होने के बाद मसल ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, ब्लड से वो रेस्पिरेटरी सेंटर के जरिए आके बाहर निकल गया। ठीक है, इनिशियली हमें वाई एक्सिस और एक्सिस एक्सिस में नजर आई, ये मिनट्स है, ये विद इन मिनट्स क्या हो रहा है, और ये हम देख रहे हैं ये अल्वुलर वेंटिलेशन जो है ये कितने लीटर पर मिनट के हिसाब से जारी है। हम देखें कि पहले तो ये 14 लीटर पर मिनट के हिसाब से, फिर हमने देखा कि ये अल्वुलर PCO2 जो वो 40 के हिसाब से, फिर अगर हम एक्सरसाइज बढ़ाते जा रहे हैं तो ये PCO2 जो है वो ज्यादा हो जाएगी और फिर ये कम होती शुरू हो जाएगी। जब ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये अब ये बाहर ब्लो ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, न्यूरोजेनिक कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब होता है क्या है कि काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रेन की एबिलिटी होती है ना कि वेंटिलेटरी रेस्पॉन्स देना है, वेंटिलेशन करनी है, इसका लर्नड रेस्पॉन्स होता है। अगर कोई सब्जेक्ट रिपीटेड पीरियड्स ऑफ एक्सरसाइज, रिपीटेड एक्सरसाइज कर रहा है, तो ब्रेन बिकम प्रोग्रेसिवली मोर एबल टू प्रोवाइड द प्रॉपर सिग्नल्स। एक सब्जेक्ट उसने आज एक्सरसाइज की है तो उसका ब्रेन जब तक जाके उसको समझे कि इसने एक्सरसाइज की और उसी तरह से रेस्पिरेटरी सिग्नल्स भी भेजे, उसी तरह से अल्वुलर वेंटिलेशन ज्यादा करे। लेकिन अगर वो रिपीटेड एक्सरसाइज करता रहेगा तो ब्रेन उसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेगा और प्रॉपर सिग्नल्स भेजेगा टू कीप द ब्लड PCO2 एट इट्स नॉर्मल लेवल। So it is believed that even the cerebral cortex is involved in the learning, because experiment that blocks only the cortex only blocks the learned responses. So cortex का भी काम है कि वो भी कुछ सिग्नल्स भेजे कि जनाब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को cerebral cortex से मोटर सिग्नल्स इंपल्सेस जा रहे हैं towards the respiratory centers. Neurogenic control during exercise. Effect of maximum exercise in an athlete to shift the alveolar PCO2 ventilation response curve to a much higher level than normal. एक बंदा है, एथलीट है, उसकी हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज इसकी alveolar ventilation ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर it is believed that caused by neurogenic factors almost exactly the right amount of to maintain the arterial PCO2. अब ये PCO2 की बात कर रहा है at the normal level of 40 both in resting and during the heavy exercise. अब देखें कि हम ये भी देख रहे हैं कि न्यूरोजेनिक रेस्पॉन्सेज बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उसके PCO2 को बढ़ने नहीं दे रहे ब्लड के अंदर, वो उसको क्या कर रहे हैं, वो 40 पे भी रख रहे हैं, चाहे वो रेस्टिंग में हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो, इसका PCO2 इस लाइन के अंदर ये 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही है। ठीक है, अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसको, for a short period of respiration can be controlled voluntarily, one can hyperventilate, hypoventilate. बड़े थोड़े पीरियड के लिए अगर कोई बंदा जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, वॉलंटरी कंट्रोल कर सकता है, वो हाइपर वेंटिलेट बड़े बड़े सांस लेके कम वेंटिलेट करके ये काम कर सकता है। लेकिन इसकी वजह से हो क्या है कि सीरियस डीअरेंजमेंट्स होती है PCO2 में, pH में और PO2 के अंदर दैट अकर्स इन द ब्लड। हाइपर वेंटिलेट करने से, हाइपो वेंटिलेट करने से, आप लोगों के पास अगर कुछ इस तरह के पेशेंट्स भी आए तो आप उसमें देखेंगे जो हाइपर वेंटिलेट कर रहे होते हैं उनके अंदर जो वो PO2 की कमी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनकी जनरेशन ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है। Irritant receptors in the airway, the epithelium of respiratory system supplied by the sensory nerve endings. तो pulmonary irritant receptors भी उसमें मौजूद होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं काफी इंसिडेंट में। These receptors initiate coughing, sneezing or bronchial constriction in a person with such disease as asthma or in emphysema. अगर उनकी एयरवे के अंदर कोई irritant receptors मौजूद हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो इरिटेट हो जाएं तो उसकी वजह से भी जो है वो डिरेंजमेंट्स हो सकती हैं।
फंक्शन है लंग्स की जे रिसेप्टर्स का, ये फ्यू नर्व एंडिंग्स हैं अल्विलर वॉल्स इन द जक्स्टा पोजिशन, जिन्हें हम जे रिसेप्टर्स कहते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। व्हेन द पल्मोनरी कैपिलरीज बिकम इंगॉर्ज्ड, जब पल्मोनरी कैपिलरीज में बहुत ज्यादा ब्लड आ जाए, एडिमा हो जाए इन कंडीशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये एक्साइट कर देती हैं, पेशेंट को फीलिंग आती है कि उससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिस्नी, उससे सांस नहीं लिया जा रहा, अगर ये जे रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाए। ब्रेन एडिमा इन केस के रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एक्यूट ब्रेन एडिमा हो जाए, अगर ब्रेन कंकशन इंजरी हो जाए, जैसे किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई सर में बहुत जोर से कोई चीज आके स्टक की, कोई डंडा लग गया, कोई पत्थर लग गया, कोई ईंट गिर गई सर पे, तो होता है क्या, हम कहते हैं कंकशन इंजरी हो गई है। अब उस इंजरी के अंदर, कंकशन इंजरी के अंदर या ब्रेन कंकशन के अंदर जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। एंड ब्रेन एडिमा कैन बी रिलीव टेम्परली, उसको कैसे करते हैं, सब्जेक्ट्स अगर आते हैं उनको हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हम देते हैं, जैसे मैनिटॉल, मैनिटॉल इज अ डाययूरेटिक, तो उसकी वजह से एडिमा रिलीव हो जाता है। एनेस्थीसिया में एनेस्थेटिक और नार्कोटिक ड्रग्स हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस करती है। पीरियोडिक ब्रीदिंग भी है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस हैं कुछ, जिसे कुछ कंडीशंस के अंदर, डिजीजेस के अंदर होती हैं, उसमें अगर गैप के साथ ये ब्रीदिंग आ रही है, काफी शॉर्ट इंटरवल के बाद बंदा बड़े बड़े सांस लेके फिर रोक देता है, तो वो भी जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस करती है। एक और एक ब्रीदिंग होती है चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग, ये टिपिकल पीरियोडिक ब्रीदिंग है, इसमें वैक्सिंग एंड वीनिंग है, जिससे बढ़ती है ब्रीदिंग और फिर कम होना शुरू हो जाती है, फिर बढ़ती जाती है ब्रीदिंग, बड़े बड़े सांस लेके फिर छोटे छोटे सांस लेके, ये बढ़ती है घटती है 14 सेकेंड 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर, इसे हम कहते हैं चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग है, ठीक है। इसमें डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी हमें नजर आ रही है, ठीक है, इतना गैप आ जाता है इंस्पिरेशन और फिर एक्सपिरेशन के अंदर, ठीक है। बेसिक क्या है इसकी चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, व्हेन अ पर्सन ओवर ब्रीथ, बड़ा सांस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड व्हाइल इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी सेकंड लगते हैं बिफोर द चेंज्ड पल्मोनरी ब्लड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रेन पे पहुंचे और वो इनहिबिट करे जाके एक्सेस वेंटिलेशन को। The person जो वो already over ventilated for a few extra seconds, तो वो जैसे ही ओवर ब्रीथ करके टू मच ऑक्सीजन वो रिमूव कर चुका होता है, ऑक्सीजन उसकी बढ़ चुकी होती है, फिर वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो जाए ब्रेन पे पहुंचे और वो उसको जाके इनहिबिट करे। When this pulmonary blood transfer to the brain respiratory center, वो वहां पे जाके उसको एक्सेसिवली फिर डिप्रेस कर देता है, वो काफी देर के लिए फिर रुक जाता है सांस लेना, फिर अपोजिट साइकिल चलती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब बंदे ने सांस लेना रोक दिया हुआ, क्योंकि काफी सारी ऑक्सीजन उसको मिल चुकी थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया इन द एल्वियोलाई, अगेन फ्यू सेकंड के बाद ब्रेन रेस्पॉन्ड करता है न्यू चेंजेस के लिए कि जनाब अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, फिर वो बड़ी सांस लेता है, फिर वो रिपीट्स होती है साइकिल। इसमें होता है क्या है, ऑक्सीजन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, ऑक्सीजन कम होगी, और इसके बीच में बंदा जो है वो पॉज के साथ रेस्पिरेशन अपनी लेता जाएगा। स्लीप एपनिया भी है, एब्सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, किसी बंदे की ब्रीदिंग जो है वो स्पॉन्टेनियसली रुक जाए, स्लीप एपनिया। इसमें होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए अपर एयरवे की, फैरिंग्स की, या सीनस के अंदर जो रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो इम्पेयर्ड हो जाए, इसमें जो सब्जेक्ट वो लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा होता है, ठीक है। और उसमें होता है कि स्लीप एपनिया साइलेंट पीरियड आ जाता है, जिस तरह स्नोरिंग कर रहे होते सब्जेक्ट, स्नोरिंग करते करते खराटे लेते लेते बीच में रुक जाते हैं, वो एपनिया है। उसमें होता क्या, फिर बड़ा सा खराटा लेते हैं, बड़ी सी एक सांस लेते हैं, उसमें होता है क्या, बेसिकली उसकी वजह से ऑक्सीजन क्योंकि कम होती है और PCO2 कम हो जाता है, क्योंकि बीच में रुक जाता है ना सांस, तो उसकी वजह से फिर रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है उनकी, ठीक है। और ये बेसिकली जो है जिसमें सडन अटैक ऑफ ब्रीथ आती है, लाउड स्नोरिंग, फिर एक गैस आ जाता है, फिर स्नोरिंग, एंड देन रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एपनिया। अच्छा जी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ अपर एयरवे पैसेजेस। नॉर्मली क्या होता है, जो मसल्स होते हैं ना, फेरिंग्स नॉर्मली कीप्स दिस पैसेज ओपन, जब हम सो रहे होते हैं या चाहे हम नॉर्मल होते हैं तो वो अलाउ करते हैं एयर को टू फ्लो करता है, आराम से लंग में जा रहा है, इंस्पिरेशन हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग द डीप स्लीप ये जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये जो पैसेज होता है ना ये रिमेन ओपन होता है, परमिट करता है कि जी एडिक्वेट एयर फ्लो आराम से आए जाए। कुछ इंडिविजुअल के अंदर ये पैसेजेस नैरो होते हैं, ठीक है, उनके जैसे वो डीप स्लीप में जाते हैं ये मसल की रिलैक्सेशन हो जाती है, ये फेरिंग्स कंप्लीटली क्लोज होना शुरू हो जाता है, अब यहाँ से एयर अंदर लंग में जा नहीं सकती है। सो ये ज्यादातर ओल्डर सब्जेक्ट्स में होता है, ओबीस पर्सन्स में होता है,
और जिन सब्जेक्ट के अंदर जो है वो सॉफ्ट टिश्यू या फेरिंग्स के बाद फैट की डेपोजिशन ज्यादा होती है, वो कंप्रेस करता है फेरिंग्स ड्यू टू एक्सेसिव फैट एंड मैसेज इन द नेक। तो स्लीप एप्निया जो ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, वेरी लार्ज टंग, टॉन्सिल्स अगर किसी के लार्ज है उसकी वजह से हो सकती है, या जो पैलेट्स होती है उनकी एब्नॉर्मल किसी शेप की वजह से हो सकती है। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू फ्लो ऑफ एयर टुवर्ड्स द लंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इसकी मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो हम सब्जेक्ट को एडवाइस करवाते हैं कि यूवलोपैलेटोफैरिंजियोप्लास्टी करवा लें, ट्रेकियोस्टोमी करवा लें, या उनको नेजल वेंटिलेशन दी जाए थ्रू कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज CPAP। Central sleep apnea occurs when the neural drive to respiratory muscles is transiently abolished. अगर रेस्पिरेटरी मसल की तरफ जो न्यूरल ड्राइव है वो ट्रांजिएंटली थोड़े वक्त के लिए अगर बंद कर दी जाए, इन अ फ्यू पर्सन्स विद स्लीप एप्निया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ड्राइव कर रहा है, जो उसको सिग्नल्स भेज रहा है टू द वेंट्रली मसल्स ट्रांजिएंटली सीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही सिग्नल्स ना आए। तो इसके अंदर ये डिसऑर्डर्स कब हो सकते हैं? सेसेशन ऑफ वेंटिलेटरी ड्राइव ड्यूरिंग स्लीप, अगर सेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई डैमेज हो जाए, या रेस्पिरेटरी न्यूरोमस्कुलर जो ऑपरेटर्स है नर्व और जो हमने ग्लोमस सेल्स देखे थे उसके अंदर कोई अबनॉर्मैलिटीज आ जाए। ठीक है, अच्छा अब हम अगर इसको कंपेयर करते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन को जिसमें सेंट्रल पेरिफेरल आ जाता है, तो हम कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स सेंसिटिव एरिया जो है वो वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला में, जबकि पेरिफेरली हम देखते हैं ग्लोमस सेल्स हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स में जो कि कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज में मौजूद हैं। इनके सिनेप्टिक कनेक्शंस हैं वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल के साथ, कैरोटिड एओर्टिक, जबकि ये सेंट्रल जो वो सेंसिटिव होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के। पेरिफेरल में हम देखते हैं ये नर्व्स जो है वो डॉर्सल मेडुलरी रेस्पिरेटरी एरिया सेंसिटिव होती है लो PO2 के, जबकि ये इंक्रीज PCO2 को जो एक्यूट इफेक्ट दिखाते हैं, बाद में क्रॉनिक इफेक्ट दिखाते हैं। लो PO2 जो है इन पेरिफेरल पोटेंट स्टिमुलेंट है फॉर द इंक्रीज अल्वियोलर वेंटिलेशन, और यहाँ पे प्रोलॉन्ग इंक्रीज PCO2 है, ये काउंटरएक्ट करता है बाय द किडनी, फिर किडनी उसमें बाय ऐड करती है बाइकार्बोनेट बफर और एक्सक्रीट करा रही है मोर हाइड्रोजन। अच्छा, ये पेरिफेरल को कैन नॉट बी करेक्टेड बाय द किडनीज, ये तो ऑक्सीजन की सारी कहानी है। ठीक है, अच्छा सेंट्रल में ओनली टेम्पररी इंक्रीज इन अल्वियोलर वेंटिलेशन रैपिडली अडेप्ट करता है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया जो है वो उसमें वेंटिलेशन को बढ़ा देती है। जनाब ओके जी, अल्लाह हाफिज, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड।